Dear students, today in this lecture we will learn about what is automation, what are the types of automata and representation of automata, and acceptance of a string by a finite automata. Basically, the word automata comes from the word automation. जो automata है, this word comes from the automation. कहाँ से आया ये word? Automation से आया है, right? तो what is automata? What is automation? And automation is defined as a system or abstract machine which transform information, data or material by performing some function to produce output विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ मैन. मतलब जहाँ पे मैन का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं होता है तो वहाँ पे क्या आता है? ऑटोमेशन. लाइक फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक machine tools, automatic packing machine, automatic photo printing machine, or you can say that ATM is the best example of their automation, right? Automation होता क्या है? Basically this diagram shows the model of automation. In this model we have some certain number of inputs, and these input will pass through a certain number of states like Q1, Q2 and Qn and will produce the output. ऑटोमेशन में क्या होता है कि आप कुछ इनपुट, यूजर कुछ इनपुट प्रोवाइड करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट कुछ इंटरनल फंक्शनिंग प्रोवाइड होगी. मीन्स योर इनपुट विल गोज टू सर्टेन नंबर ऑफ स्टेट्स एंड based on your input it will produce the output. So here are the characteristics of automata. First is input. It is a set of input symbol from given input alphabet like I1, I2 and IP. And second is output, the set of output symbols. जो भी आपने input दिया उसके बेस पे क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इट इज सेट ऑफ आउटपुट. एंड थर्ड इज स्टेट्स. थर्ड वन इज स्टेट. स्टेट सोज दैट कि एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम योर मशीन कैन बी और योर ऑटोमेटा कैन बी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. मतलब इन सब स्टेट्स में से किसी में भी हो सकता है जो वहाँ पे मेंशन की गई है. नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टेट रिलेशन. स्टेट रिलेशन ये शो करता है कैसे दो स्टेट्स आपस में रिलेटेड है. बेसिकली द रिलेशन ऑफ स्टेट्स इज डिपेंड ऑन present state and the present input symbol. Like you are in a present state q naught and you have applied input symbol a and you are reaching to q1. तो ये जो शो कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन स्टेट q0 एंड q1 विद ट्रांजिशन एज लेबल्ड विद इनपुट सिंबल a, राइट. ये शो क्या किसको करता है? स्टेट रिलेशन को. सेम आउटपुट रिलेशन. द आउटपुट इज रिलेटेड टू इधर स्टेट्स ओनली. आपका आउटपुट स्टेट से रिलेटेड हो सकता है और इट कैन बी रिलेटेड टू द बोथ इनपुट एंड द स्टेट्स. ये आपको आगे क्लियर होगा कहाँ ये स्टेट से रिलेटेड है और कहाँ ये आपके इनपुट से रिलेटेड है, राइट. नेक्स्ट, these are the types of finite automata. Finite automata basically categorized into main three categories: finite automata, push down automata and Turing machine. The type of automata के जो main it is categorized into main three categories, वो है हमारा finite automata, push down automata और Turing machine. Again here the finite automata is divided two parts: finite automata without output or finite automata with output. Here the finite automata without output is again divided into three parts: deterministic finite automata means DFA, non-deterministic finite automata NFA, and null NFA, yeah, we can say that null move NFA. And with output automata is divided into Mealy machine और Moore machine. अब बात ये आती है कि what is the difference between without output और with output. तो as the name implies हमको पता चल रहा है कि विदाउट आउटपुट में कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा, विद आउटपुट में कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगा. तो अगर विदाउट आउटपुट में कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा तो होगा क्या? बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर. दिस इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा. और अगर हमने सपोज करो कोई इनपुट स्ट्रिंग दी है w, तो दिस फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करेगा? या तो आपकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या आपकी स्ट्रिंग को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा. That's why this finite automata is also known as string recognizer. It will not be produce any output. यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा जो विदाउट आउटपुट है कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा. जो भी आप इनपुट स्ट्रिंग अप्लाई करेंगे उसके बेस पे अगर आपका स्ट्रिंग वैलिड है तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा और आपका स्ट्रिंग वैलिड नहीं है तो ये उस स्ट्रिंग को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा. बट जब हम मीले और मोरे के केस में आएंगे तो वी विल अप्लाई सम इनपुट. सपोज हम कुछ इनपुट देंगे और उसके बेस पे क्या प्रोड्यूस होगा? हमें आउटपुट.
अब यहाँ पे जो हम ऊपर रिकॉग्नाइज कर रहे थे उससे मतलब नहीं है, आप जो भी इनपुट दे रहे हैं अगर आपका इनपुट वैलिड है तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन या ऑटोमेटा। तो बेसिकली डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ 5 टपल्स Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट एंड F, वेयर Q इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। सपोज करो आपके मशीन में 3 स्टेट्स हैं, तो Q में क्या आ जाएगा? Q नॉट, Q1 एंड Q2 एंड Q2, राइट? And sigma is a finite set of finite we can say sigma is a finite non-empty set of input symbols called alphabet. सपोज करो आपने जो मशीन बनाई है उसमें इनपुट के लिया है 0,1, तो दिस सिग्मा रिप्रेजेंट इनपुट सिंबल्स। एंड थर्ड इज ट्रांजिशन फंक्शन दैट शोज, क्या शो करता है ट्रांजिशन फंक्शन? इट शोज q इंटू सिग्मा इंटू क्यू। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q इंटू सिग्मा इंटू क्यू। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग ये है कि आप सपोज करिए Q इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, आप किसी एक सेट ऑफ स्टेट्स, इस सेट ऑफ स्टेट से किसी एक स्टेट में, लेट्स से वी आर ऑन स्टेट Q0, और ये क्या है? सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। और यहाँ से मैंने इनपुट लिया, यहाँ से मैंने इनपुट लिया क्या? 0, और यहाँ से इनपुट लेने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेट पे मूव करता हूँ, एंड दिस स्टेट शुड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ Q। सपोज करो हम कहाँ पहुंचे? Q1 पे। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है कि हाउ यू विल ट्रांजिट फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट, राइट? तो यहाँ पे क्या कि Q0 पे मैंने 0 इनपुट किया और कहाँ पहुंच गए? Q1। तो दिस Q0 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू Q, दिस 0 इज बिलोंग्स टू sigma, and this Q1 also belongs to Q, right? Q0 is the initial state, and Q0 is the initial state, and Q0 is the element of Q. Why it is the element of Q? क्योंकि ये इसका एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हम एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में या DFA में, जो भी हम FA बनाएंगे, उन सब में इनिशियल स्टेट क्या होना चाहिए? ओनली 1। क्या होना चाहिए? ओनली 1 स्टेट। फाइनल स्टेट कैसे, इनिशियल स्टेट कैसे होना चाहिए? ओनली 1। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, और रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? Q से, राइट? इट इज अ सेट। फर्स्ट वन क्या था? एलिमेंट, बट इट इज अ सेट मीन्स दैट कि F इज अ सबसेट ऑफ Q, मीन्स दैट कि हमारे मशीन में मोर देन 1 फाइनल स्टेट हो सकते हैं, राइट? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ DFA, क्या जिसमें Q किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, एंड सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स known as alphabets. ट्रांजिशन रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फंक्शन जो किसी प्रेजेंट मैप करता है किसमें? Q इंटू सिग्मा इंटू Q में। Q नॉट इज द इनिशियल स्टेट, एंड F इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट। These are some properties of DFA. क्या? Deterministic refers to the uniqueness of computation, and second one is finite automata are called deterministic finite automata if the machine is read an input string one symbol at a time. क्या कि कोई भी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा डिटरमिनिस्टिक तब कहलाता है जब जो मशीन है वो एक टाइम में केवल एक ही इनपुट सिंबल रीच करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन DFA there is only one path for specific input from the current state to the next state। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाहते हैं कि अगर सपोज करो आप DFA बना रहे हैं और आपने कोई करंट स्टेट है, लेट्स से इट्स Q0, और आप एक इनपुट सिंबल करते हैं Q0, तो आप एक सिंगल इनपुट करने के बाद केवल एक ही स्टेट पे जा सकते हैं, दैट इज Q1, या कोई भी जो भी हमारे पास स्टेट होगा, इट शुड बी यूनिक। समझ में आया कि जब इस पॉइंट का मतलब ये है कि देयर इज ओनली वन पाथ फॉर ए स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम द करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। मतलब अगर मैं करंट स्टेट Q0 पे हूँ और सिंबल A इनपुट करते हैं, और सपोज मैं मूव हो गया किस पे? Q1 पे, तो अगर Q नोट के A इनपुट करने पे मैं मूव A पे हो गया हूँ, तो इट मीन्स अब Q नोट से A इनपुट करने पे किसी दूसरी स्टेट पे मूव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये दिया, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर ए स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम द करंट स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट, राइट? नेक्स्ट, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा।
This block diagram contained input tape, reading head and finite control. This input tape is divided into number of squares where each square can contain only a single input character from the input alphabet sigma, right? And इस इनपुट टेप में हमारे पास दो सिंबल्स दिए हैं, दिस सिंबल एंड अ डॉलर, that are known as end marker. This is known as left hand marker and this is known as right hand marker. अगर ये एंड मार्कर हमारे टेप में एग्जिस्ट करते हैं तो ये बताता है कि हमारा जो इनपुट टेप है वो किस लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का है. अगर हम इन दोनों को रिमूव कर दें, मीन्स दैट द एब्सेंस ऑफ द एंड मार्कर ऑफ द टेप, ये सिग्निफाई करता है कि जो हमारा इनपुट टेप है वो किस लेंथ का है, इनफाइनाइट. ठीक है, वो किस लेंथ का हो गया हमारा, इनफाइनाइट लेंथ का, राइट. नेक्स्ट इज रीडिंग हेड. रीडिंग हेड क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, रीडिंग हेड क्या करेगा, रीडिंग हेड विल रीड अ सिंगल इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग एंड मूव आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट डिपेंड ऑन द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे क्या, रीडिंग हेड read one square at a time and can move one square either to the left or to the right. नेक्स्ट आता है फाइनाइट कंट्रोल. जो रीडिंग हेड है उसने सिंबल तो रीड कर लिया जो भी उसके अंडर में था, बट वो प्रेजेंट स्टेट से किस स्टेट पे नेक्स्ट पे मूव करेगा, आइदर इट विल रीड मूव टू द लेफ्ट और राइट, और कौन सी स्टेट पे मूव करेगा इट इज डिपेंड ऑन फाइनाइट कंट्रोल. सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास रीडिंग हेड के अंडर में सिंबल आता है ए और हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है Q0, या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांजिशन फंक्शन के थ्रू, वी हैव अ प्रेजेंट स्टेट Q0 एंड इनपुट सिंबल इज ए. तो अब इस ए इनपुट करने पे हमारा जो ट्रांजिशन है वो किस स्टेट पे मूव करेगा, इट इज डिपेंड ऑन फाइनाइट कंट्रोल, राइट. नेक्स्ट, नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. Basically, finite automata can be represented by transition graph or transition table. So first I will discuss the transition graph, what is transition graph and what the symbols are used to represent a transition graph. Basically, a transition graph or transition system is a finite directed labeled graph in which each vertex or node represent a state and the directed edge indicate the transition between the states and the edges are labeled with input and output, right. मतलब ट्रांजिशन ग्राफ क्या है कि हमारा एक ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन सिस्टम क्या एक फाइनाइट डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हर एक वर्टेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को, और जितने भी डायरेक्टेड एज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट रिलेशन विद सम इनपुट सिंबल. तो दीज आर सम सिंबल्स दैट यूज्ड इन फाइनाइट ऑटोमेटा इन द ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. फर्स्ट वन इज सर्कल that represent the states. किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट्स को. एंड सर्कल विद एन एरो ये रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट को. किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल स्टेट को. डबल सर्कल मतलब सर्कल इनसाइड सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फाइनल स्टेट को, राइट. एंड दिस ट्रांजिशन शोज दैट स्टेट रिलेशन. सपोज करो ये जो डायरेक्टेड एज है फ्रॉम नोड P टू नोड Q लेबल्ड इनपुट सिंबल A is represented as follow and this is known as transition from state P to state Q with input symbol A, right. नेक्स्ट, अब आता है कि दूसरा मैंने क्या बोला था, रिप्रेजेंटेशन हम ऑटोमेटा का दो तरीके से कर सकते हैं. किससे, फाइनाइट ट्रांजिशन ग्राफ से या फिर ट्रांजिशन टेबल से. ट्रांजिशन टेबल क्या होता है, बेसिकली दिस मैप फंक्शन Q इंटू सिग्मा इंटू Q और 2 की पावर Q. ये 2 की पावर Q क्या है ये मैं आगे बताऊंगा. बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन की जो हमारे पास जो टेबल बनती है वो या तो DFA की होगी, DFA से बनाओगे या फिर NFA से बनाओगे. अब NFA क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा. अपना आप यहाँ पे आपने मैप किया Q इंटू सिग्मा इंटू Q. हेयर Q इज अ सेट ऑफ स्टेट्स एंड सिग्मा इज सेट ऑफ इनपुट सिंबल. तो आप किसी प्रेजेंट स्टेट से कोई इनपुट सिंबल लेते हैं तो कहाँ पे मूव करेंगे उसको बेसिकली हमें ट्रांजिशन टेबल में मैप करना है. तो टू शो दिस ट्रांजिशन फंक्शन वी यूज द टेबल कॉल्ड ट्रांजिशन टेबल. द टेबल टेक 2 वैल्यूज, स्टेट्स एंड इनपुट सिंबल, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट स्टेट्स हैं
ये प्रेजेंट इनपुट सिंबल 0 और प्रेजेंट स्टेट सिंबल क्या है हमारे पास, इनपुट सिंबल 1। मैंने Q0 स्टेट्स पे जब 0 इनपुट किया तो हम कहाँ मूव करते हैं, Q0 स्टेट पे अगर 1 मूव किया तो 1 इनपुट किया तो कहाँ मूव करते हैं, Q1 स्टेट पे हमने क्या इनपुट किया, 0, तो सपोज हम कहाँ मूव कर रहे हैं, Q1 एंड Q2। बट DFA में क्या बताया था, DFA में क्या बोला था कि अगर हम किसी भी स्टेट पे हैं, सपोज हम किस स्टेट पे हैं, Q1 स्टेट पे, एज पर द टेबल हम किस स्टेट पे हैं, Q1 स्टेट पे हैं, और क्या इनपुट कर रहे हैं, इनपुट सिंबल इज 0। DFA क्या कहता है कि अगर हम प्रेजेंट स्टेट पे हैं और कोई इनपुट अप्लाई करते हैं तो देयर शुड बी ओनली 1 यूनिक स्टेट। बट यहाँ पे कितने स्टेट आ रहे हैं, 2। किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के सिंबल, किसी एक पर्टिकुलर इनपुट सिंबल के अंडर में अगर किसी टेबल में 2 स्टेट्स आते हैं तो दिस टेबल डज नॉट बिलोंग्स टू DFA, इट इज बिलोंग टू NFA। NFA में क्या होता है कि अगर जो हमारा NFA में एवरीथिंग विल बी सेम बट ट्रांजिशन फंक्शन डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, Q इंटू सिग्मा इंटू टू द पावर Q। बेसिकली क्या बनाता है, पावर सेट, राइट। और जब पावर सेट बनाता है तो किसी एक पर्टिकुलर इनपुट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से किसी एक पर्टिकुलर इनपुट देने के बाद वी हैव मोर देन 1 ऑप्शंस, मतलब NFA में हम एक से ज़्यादा स्टेट पे मूव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं Q1 पे, ये समझ में आया कि ये टेबल में यहाँ पे Q1 Q2 क्यों दिया है। अगर ये DFA होता तो इनमें से हो सकता था केवल एक ही हमारे पास स्टेट होती। लेट्स से हमने कौन सी ली, Q2, तो Q1 के 0 इनपुट करने पे हम Q2 है, Q1 के 1 इनपुट करने पे हम Q2 है, राइट। एंड Q2 के 0 इनपुट करने पे Q1 है एंड Q1 के लिए यहाँ पे नील दिया है, राइट। इसका मतलब कोई भी ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम DFA में हैं, अगर ये NFA है तो ठीक है, चलेगा। NFA में अगर हम कुछ ना भी इनपुट करें तो भी हम आगे मूव कर सकते हैं। बट अगर हम DFA में हैं तो हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना जरूरी है, तो दिस इज नॉट अलाउड इन DFA। बट अगर Q2 पे मैंने क्या इनपुट किया, 0, उस पर पहुंचे Q1, और अगर मैं लिख देता हूं Q2 के 1 इनपुट करने पे हम पहुंच रहे हैं Q0, तो दिस इज वैलिड फॉर DFA। इज दिस क्लियर। ट्रांजिशन टेबल हमारा NFA का भी हो सकता है और DFA का भी हो सकता है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं NFA और DFA की टेबल में। पहली बात तो अगर हम टेबल हमारी DFA की है तो किसी भी इनपुट के कॉलम में मोर देन 1 स्टेट नहीं होंगे, समझ में आया। और अगर सपोज करो अगर आपकी किसी टेबल में किसी इनपुट के अंडर में मोर देन 1 स्टेट्स आते हैं, इट मीन्स दैट टेबल इज बिलोंग्स टू NFA। एंड सेकंड क्या था, यहाँ पे एक आया था, हमने लिखा था नील। तो DFA क्या कहता है, DFA ये कहता है कि हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो DFA नहीं है, फिर क्या है, NFA। बट NFA में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट से हर एक इनपुट सिंबल के ट्रांजिशन एग्जिस्ट करे, राइट। नेक्स्ट, अब आता है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रिंग बाय ए फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा हमने बनाया है और वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये कि कैसे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि जो स्ट्रिंग दिया था वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इज द डेफिनेशन। सपोज ए स्ट्रिंग W इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा M, Q, सिग्मा, ये दे रखा है। अगर कोई स्ट्रिंग फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट होता है इफ कंडीशन के दिए, इफ ट्रांजिशन फंक्शन दिया है Q0, और सपोज करो हमने कोई स्ट्रिंग ली W और हम पहुंचते हैं कहाँ, Q, कहाँ पहुंचते हैं, सॉरी, दोबारा से देख लीजिए। सपोज कैसे पता चलेगा आपको कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है, अगर आप इनिशियल स्टेट से चल के फाइनल पे पहुंचते हैं तो यू कैन से दैट योर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन दिया है, इसमें हमने Q0 स्टेट से चलना शुरू किया एंड वी पास स्ट्रिंग W एंड रीच टू Q। एज पर दिस, अगर हमारे पास क्या है कि इफ ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है, Q0, W और Q, where Q0 is the initial state and this Q is final state, तो we can say that कि our string is accepted। अगर आप इनिशियल स्टेट से चल के और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो we can say that string is accepted। फॉर एग्जाम्पल,
हमने एक एग्जांपल लिया, कंसीडर एग्जांपल, जिसमें हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेट्स दिया है Q0, Q1, Q2 एंड Q3। इनपुट सिंबल क्या दिया है 0 1 एंड F इज Q0 मीन्स दैट F इज Q0। इट मीन्स ये Q0 हमारा इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम किसी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल सर्कल से, बट वही अगर मुझे टेबल में रिप्रेजेंट करना है फाइनल स्टेट को तो हम केवल उसे सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारी इनिशियल फाइनल सेम है तो सिंगल सर्कल विद एन एरो रहेगा हमारे टेबल में, राइट। तो कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दी हुई जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखे हैं और हमें ये चेक करना है कि इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन Q0। ट्रांजिशन फंक्शन हम कहाँ, किस स्टेट पे, Q0 पे। और कौन सा स्ट्रिंग प्रोसेस करना है, हमें करना है 1 1 0 1 0 1। तो प्रेजेंट स्टेट इज Q0 एंड प्रेजेंट स्टेट इनपुट सिंबल इज Q1। तो आप इस टेबल में देखेंगे Q1 के, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेजेंट स्ट्रिंग कैसे ट्रांजिशन चलेगा, वो इस तरीके से चलेगा। ट्रांजिशन इनिशियल स्टेट Q0 और स्ट्रिंग W क्या पास करना है हमें, 1 1 0 0 0 1, ये प्रोसेस करना है, राइट। अब ये स्ट्रिंग प्रोसेस करके देखना है और ये चेक करना है कि ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको देखेंगे तो चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा। ट्रांजिशन फंक्शन क्या चलता है, Q0 पे इनपुट सिंबल इज, मतलब प्रेजेंट स्टेटेड Q0 और प्रेजेंट इनपुट सिंबल इज 1। तो Q0 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, Q1। ये इनपुट सिंबल रीड हो गया तो अब क्या बचा, 1 0 0 0 और 1। अब प्रेजेंट, नाउ द प्रेजेंट स्टेट इज Q1 and present input symbol is Q0, sorry present state is Q1 and present symbol is 1। तो Q1 के आप 1 इनपुट करने पे कहाँ मूव कर रहे हो, Q0 में। तो अगेन Q0 ये इनपुट रीड हो चुका है तो 0 0 और 1। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट इज Q0, प्रेजेंट इनपुट सिंबल इज 0। तो Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q2। और अब क्या बचा हमारे पास, 0 0 1। Now present state is Q2, input symbol is 0। Q2 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0, ये बचा 0 और 1। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रेजेंट स्टेट इज Q0 और इनपुट सिंबल इज Q0। तो आप कहाँ मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग टू Q2 Q2 और सिंबल क्या बचा, 1। नाउ Q2 के 1 इनपुट करने पे कहाँ आप रीच कर रहे हैं, Q3। Q2 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ रीच कर रहे हैं, Q3। क्या ये Q3 फाइनल स्टेट है, क्या ये Q3 फाइनल स्टेट है, नो। तो दिस स्ट्रिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब 1 1 0 0 0 1 इज नॉट एक्सेप्टेड। इज दिस क्लियर। अब कौन सा इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, तो अब सपोज करो हमने एक इनपुट स्ट्रिंग लिया, नेक्स्ट ये ले रखा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट स्टेट है और इनपुट सिंबल है। अब आप देखिए Q0 के अब क्या करते हैं कि मतलब हम एक जो हमारे पास टेबल था उसको यहाँ बना लेते हैं एक बार, नहीं तो बार बार हमें मूव करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये टेबल दी गई है और चलो इसी से देख लेते हैं। हमने प्रेजेंट स्टेट हमारे पास क्या दे रखी है, Q0, 1 मिनट। नाउ चेक दिस स्ट्रिंग, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया है 1 1 0 1 0। पहले वाला जो स्ट्रिंग हमने चेक किया था वो रिजेक्ट हो गया था, ये मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल बना लिया। अब मुझे चेक करना है, प्रेजेंट स्टेट इज Q0, प्रेजेंट इनपुट सिंबल इज 1। तो आप देखिए Q0 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, यू आर मूविंग टू Q1 स्टेट, 1 0 1 0 1। अब प्रेजेंट स्टेट हमारे पास क्या है, Q1 और इनपुट सिंबल क्या है, 1। अब Q1 के 1 इनपुट पे हमारा मशीन कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, Q1 के 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं हम,
Q0, हमारे पास क्या बचा 0 1 0 1. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज Q0 एंड इनपुट सिंबल इज 0. तो Q0 के 0 इनपुट करने पे ट्रांजिशन कहाँ मूव करता है Q2 और हमारे पास स्ट्रिंग क्या बची 0 मतलब 1 0 1. नेक्स्ट अब आप Q2 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहा है हमारा ट्रांजिशन का Q3 एंड इट इज 0 1. नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट इज Q3, इनपुट सिंबल इज 0. तो Q3 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हैं Q1. तो नाउ इट इज Q1 एंड 1 राइट. अब नेक्स्ट आप ट्रांजिशन Q1 के 1 मूव करने पे आप कहाँ मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं Q0. स्ट्रिंग क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं, ब्लैंक हो गया. अब Q0 के नल इनपुट करने पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हम कहाँ पहुंच जाते हैं, वी रीच टू Q0 स्टेट एंड Q0 स्टेट इज द फाइनल स्टेट. कौन सा स्टेट है ये, फाइनल स्टेट. सो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. समझ में आया कि कैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा और कैसे रिजेक्ट होगा. अगर आप सपोज करो ट्रांजिशन फंक्शन शो करता है, अगर आप इनिशियल स्टेट से चलते हैं और कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं W एंड यू रीच टू फाइनल स्टेट. कहाँ रीच करते हैं, फाइनल स्टेट पे, तो वी कैन से दैट द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. और अगर आप इनिशियल स्टेट से चलते हैं और किसी स्ट्रिंग को पास करते हैं और फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचते, जैसे प्रीवियस हमने स्लाइड पे देखा था, इस स्लाइड पे हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल स्टेट, ये Q3 इज नॉट फाइनल, Q3 इज नॉट फाइनल स्टेट. तो फाइनल स्टेट नहीं है, तो हम फाइनल स्टेट नहीं, तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा था. बट यहाँ पे क्या है कि ये हमारा फाइनल स्टेट जो ट्रांजिशन है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं Q0 पे, एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट. ये फाइनल स्टेट है, तो हमारा स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड राइट. थैंक यू.